Vishal, you all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. I'm Namita Sachdev with you, and today nothing could have been better than introduce you to Jubilee's world, which is filled with glamour, glitz, aspirations, and betrayals, I would say. And here it is, the stellar cast and crew of this film. I'm really glad and honored to have them here on the show. Yes, I'm talking about the creator, Mr. Vikramaditya Motwani, and all the cast, the stellar cast I told you. They're all legends in their work. Yes, I'm talking about Mr. Prasenjit Chatterjee, Mr. Siddhant Gupta, Apar Shakti Khurana, and Aditi Rao Hedri. Welcome all of you to Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you so much. Thank you. लेजेंड 2 हैं यहाँ पे, 3 प्यारे लोग हैं. Everyone when it comes to acting, because जिस तरह से आप लोग सब एक्टिंग करते हो ना, so मतलब on top of this world, you all are inspirations for us, no? So sweet of you. Right. So Vikram sir, मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगी, पहले तो how did this idea of coming up with this colorful like yet 40s 50s के era का ये movie Jubilee? So it's the idea came from when we from a very very simple sort of thing. I think एक ज़माना था about 10 years ago when we were all suddenly the switch went from पिक्चरों के बारे में बात करने we suddenly started talking about series. यार क्या तुमने Breaking Bad देखी है, Mad Men देखी है, Game of Thrones देखी है. So that became the big conversation pieces that we were talking about series. And one of the things that in the office went around के what if we also made a series about the Hindi film industry in the 40s and the 50s, just post partition. And I think that idea just kind of it gathered momentum, and it ended up becoming what we see kind of today. So I think and इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है. There is right in the beginning me and the people at Phantom, Shomik, and then Atul Sabharwal coming in and giving his writing the scripts, and then yes, we have a creative team who's come in, the music people, Amit and Kausar and Aloka and our entire crew. And so it's one of those things, you have an idea just gathers itself and it takes a life of its own, and then people want to invest in it, which is great. So then Amazon hears it and says, हाँ ये कीड़ा बहुत अच्छा कीड़ा है, तो चलो हम लोग कीड़े के लिए पैसे देते हैं. Then here we are. लगी दो चीजें बेसिकली, एक तो कास्टिंग बहुत डिफरेंट अलग आपने किया, और दूसरा ये कि एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना जिसके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है डॉक्यूमेंटेशन में, या उस तरह के सिनेमा को वो क्रिएट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है उस रिसर्च के बेसिस पे. तो कितना वक्त लग गया आपको इस पूरे प्रोसेस में? नहीं, वक्त तो लगता ही है. आई थिंक एंड इन समटाइम्स इज नॉट इंटेंशनल के मतलब हम लोग ने वक्त लिया है. आई थिंक इट जस्ट सो हैपेंड दैट इट टुक अ लॉन्ग टाइम to write the script because I was off busy doing something else. So मतलब वो वक्त मिल गया हम लोग को, which happened. Atul got that time to be able to write the scripts काफी प्यार से. तो and that's true with anything. The more time you give, especially a writing process, a creative process, the better it turns out. So Atul got the time to do it. We got the time to research properly. We had एक तो मतलब अतुल और मेरा एक खुद का एक जो 20 साल का रिसर्च है जो अंदर है, जो मतलब the stories we want to be able to tell about and the love for the industry. Then there's a lot of research we did for the writing process, which was with specific to the era and the socio-political climate in the era and how things were being influenced, and AIR ka ban and the Russians and the Americans trying to influence the propaganda through their movies and stuff. So एक वो level का research है. Then there's another level about how movies were made at that time, गाड़ियों का, कपड़ों का. So there is that's a normal, I think that's a normal process. That's a time-consuming thing. So it's something, yes, you can say कि यार करने के लिए तो एक साल में भी कर सकते हैं, हम लोग को 5 साल लग गए, लेकिन अच्छा हो गया. 5 साल लग गए तो और प्यार से हुआ और मतलब और मेहनत लग गई, तो it's all good. अच्छी बात है. तो जिस भी काम में मुझे लगता है ज्यादा मेहनत लगती है वो ज्यादा अच्छे से निखर के सामने आता है, उसका आउटपुट हमेशा अच्छा निकलता है. Prasenjit sir, now turning camera towards you, and as we all know that you are, जैसे मैंने कहा, you are a legend and inspiration for all of us when it comes to Bengali cinema especially. इतना वक्त अभी, if I'm not wrong, I'm hearing the right thing कि OTT पर आपका ये डेब्यू है अभी. हाँ जी, ये 350 फिल्मों में अपार सफलता के बाद डेब्यू हो रहा है. बिल्कुल, हाँ, ये मेरा डेब्यू है OTT. Of course, with Jubilee I'm starting. इनकी उम्र भी तो डेब्यू वाली है. हाँ, 22 के सिर्फ अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. So yeah, but I'm enjoying because Jubilee I think is a show I think which we all should understand. I think this is going to create a history in its own way. It's just not because I'm the part of in Jubilee. I've seen
how the thing has been done. The way it has been written, then it comes the execution. Okay. So मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक that is not the show just we are talking about 30s, 40s or 50s. I think it's a challenge which has been taken from the director to writer, and finally we all came together to compete something which is international standard. I think that's the reason I think Jubilee is going to be one of those cult show, maybe even after 20-25 years people might talk about a show like Jubilee. So I'm very happy and blessed to be part of this journey, in fact. अभी मुझे कहीं से तो आवाज आई, बट क्लोज में कैमरा आप पे कट था कि उम्र वाली बात कही किसी ने, तो मुझे लगता है दो ही मोस्ट यंगेस्ट एक्टर्स हैं, एक प्रॉसेनजीत सर और दूसरे अनिल कपूर, है ना? बिल्कुल सही बात है। दोनों के साथ मैं काम कर चुका In fact, I met Anil few days back, so we were into the same color suit. So we hugged each other and said, we are into the trending Twitter, saying कि यार दोनों आदमी का है क्या? नहीं, सच में दोनों की उम्र बढ़ नहीं रही है, ये पीछे की तरफ चल रहे हैं दोनों। रिवर्स। हाँ, मैं तो मतलब पहली बार मैं आपसे मिली हूँ, वो भी वर्चुअली मिलना हो रहा है, तो मैंने तो कहा यार मतलब विकी पे शायद इन्फॉर्मेशन गलत ही है, कुछ तो बिल्कुल गलत है। वो गलत, वो उसने विकिपीडिया नहीं है, वो भी विकिपीडिया था जो उसने लिखा है। इस बुरे जोक के लिए मुझे सजाएं बहुत दी जाती है। बिल्कुल नहीं, तो अपार का टैलेंट है, पंजाब केसरी आती फैल जाता। वो क्या कह रहे हैं, पंजाब केसरी आते ही अपार फैल गया। वो कह रहे पंजाब केसरी आते ही अपार फैल गया। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं पहले भी ये इमेजिन नहीं कर रही थी यार, अपार होंगे और अपार बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर ना आए, ये तो हो नहीं सकता। आप मेरे बिल्कुल को एंकर होने का काम। Considering this as sense of आपने humor. सेंस और ह्यूमर को साथ में जोड़ा कैसे? especially after that joke. इतना प्यार देने के लिए, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता है ना कि आपने क्या कर दिया है? मैंने क्या किया? क्या मतलब इतना माल आपने एक्ट किया है यार। ओ अच्छा, थैंक यू। आपके लिए So sweet of you, Mama. Thank you so much. I think God has been very kind to bring me here. I think the Rojis got together and touchwood. बहुत blessed feel कर रहा हूँ। और जब विक्रम सर ने ये रोल ऑफर किया तो what was that first question that you asked to him? No, आपको लगता है सवाल पूछने की हिम्मत हो सकती है कि जब आपको लग रहा है कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए हैं। So I think उस ऑफिस में बैठना ही अपने आप में एक एक न्यू कमर के लिए अचीवमेंट है। And touchwood, I think you really would have done something right in your past life to get this so early in your career. This life also. वो शायद ये शो होगा शायद। The only right thing I've done in my life so far. और सच में really? हाँ नहीं, सच बात है ना ये तो। देखिए, I mean, first of all, I did not till the time I was 22, मैं एक्टिंग जर्नी मैंने ऐसे कोई स्टार्ट नहीं की थी, कोई क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट नहीं की थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। मेरे पहले क्रिएटिव दोस्त 22 साल की उम्र में बने, तो आई थिंक शायद मैं वहां पर लेट चल रहा था अपनी क्रिएटिव जर्नी में। यू रियली हैव टू ब्रिंग आउट दोज क्रिएटिव जूसेस इनसाइड यू राइट फ्रॉम योर स्कूल एज टू काइंड ऑफ बी रेडी टू बी ऑन हिज सेट। बट टचवुड, आई थिंक I started doing the right films, maybe with films like Dangal, and started working with people like Rajkumar Rao, Pankaj Tripathi in Stree, and उसने शायद मुझे उन वर्ड से शायद मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं शायद उनके साथ जाकर बात कर सकता हूँ। सो बट जब मैं पहली बार उस ऑफिस में बैठा, मुझे ध्यान है कि आई वॉज रियली ऑल ओवर द प्लेस कि ये मीटिंग कैसे जाने वाली है। सो thankfully it got little bagged with the audition after a week, which I thought और उस ऑडिशन में भी आई थिंक एक सिर्फ 20 सेकंड की एक बीट थी उस पूरे 3 मिनट के ऑडिशन में, जहां मुझे लगा कि ओके मे बी दिस इज द बीट आई हैव फाउंड। देन उसके बाद एक और ऑडिशन हुआ विद प्रॉपर लाइट, कैमरा एंड ऑल द मेकअप एंड तो इसका ऑडिशन प्रोसेस भी, इस शो का आई मस्ट से इसका ऑडिशन प्रोसेस भी बाकी शोज से बहुत बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा डिटेल्ड था।
So I think that's what brings in such a complete show in front of you. एक और चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, अब तक तो हमने आपको लाइक वो कॉमिक कैरेक्टर्स में देखा है, सबको हंसाते हुए स्क्रीन पर, एज एन एंकर भी अगर बात करती हूँ या एज एन एक्टर भी अगर बात करती हूँ, हर तरह से अपार शक्ति का एक ऐसा किरदार जो कभी नहीं देखा हमने स्क्रीन पे, ही इज प्लेइंग अ सुपरस्टार ऑन स्क्रीन। एक डायलॉग मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा और अच्छा लगा, मुझे लगता है आज के वक्त में जितने भी लोग हैं वो उसी रेस में शामिल हैं कि स्टार बनने आए हो, स्टार बन के रहो, एक्टर बनने की कोशिश मत करो, है ना? स्टार बनना चाहते हैं, एक्टर कोई नहीं बनना चाहता, तो इस पर आप क्या कहोगे? सभी स्टार बनना चाहते हैं, एक्टर कोई नहीं बनना चाहते हैं। इस बात पे डेफिनेटली आई थिंक इट्स ये काफी अपसेटिंग है बात। रादर अगर मैं इसको एक और चीज से जोड़ूं तो मुझे याद है जब मैं 3 फिल्में बैक टू बैक एज हीरो का दोस्त कर चुका था, तो मुझे एक जर्नलिस्ट ने बोला था कि यार कब तक हीरो के दोस्त बनोगे, कब मेन लीड में आओगे? तो मैंने कहा अगर सारे हीरो के दोस्त बन जाएंगे तो, अगर सारे हीरो बन जाएंगे तो हीरो के दोस्त कौन बनेगा? सो यू नो, तो बट हैविंग सेड दैट वो एक थोड़ा सा करप्टेड आई थिंक माइंडसेट हो सकता है कि सब स्टार बनना चाहते हैं और एक्टर नहीं बनना चाहते हैं, बट विद सच चॉइसेस एंड सच आई थिंक वर्ल्ड्स जो अब बन रहे हैं, जो अब आई थिंक प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon प्राइम वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा है, उनसे सब एक्टर बनने की आई थिंक एक जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। आई थिंक वो फिल्म मेकर्स भी अब आ चुके हैं जो सिर्फ प्योर एक्टर्स ढूंढ रहे हैं, एंड टचवुड इसके चलते आई थिंक देयर विल बी एन इक्वल मे बी रिस्पेक्ट फॉर बोथ द जर्नीज, बट ये एक जद्दोजहद हमेशा रहेगी अजीब सी कि किसी का एक्टर बनने का मन करेगा और किसी का स्टार बनने का मन करेगा, टू ईच हिज ओन, नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनीबॉडी एल्सेज यू नो डिसीजन इन लाइफ। सो या आई मीन जो जिसको मिले, जो जिसको समझ में आए वो अच्छा है। अच्छा, मूविंग ऑन टू अदिति, अभी आपकी खूबसूरती से हम बाहर नहीं निकल पाए, ताज में आपको देखा जब अनारकली में, है ना? तो अभी आप इसमें हमें सुमित्रा कुमारी के किरदार में दिख रही हैं, मतलब आप क्या करके मानेंगी? सबकी कुर्सी ले लेंगी? क्या करके मानेंगी? आप क्या करके मानेंगी? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो दैट गोज टू माई मदर। बट जो एक मेरी ड्रीम थी जैसा काम करना है, वो धीरे 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 करके थोड़ा गिर के, घुटने पे चोट खा के, फिर उठ के फिर साइकिल पे वापस चढ़ के धीरे धीरे मैंने सीखा है ओवर दीज ईयर्स। पर मेरी ड्रीम बहुत आई थिंक ड्रीम तो थी हमेशा, बट 2016 में जब मैंने मनी सर के साथ काम किया, वो मेरी चाइल्डहुड ड्रीम थी। जब वो हुआ ना, फिर तो मैंने कहा 100% मैं ड्रीम कर सकती हूँ, मैं ड्रीम करूँगी, और जिनके साथ मुझे काम करना है मैं उनके साथ ज़रूर करूँगी। और मुझे अगर मैं सच्चे दिल से चाहूँ तो वो मुझे अपनी दुनिया में लेकर आएंगे। एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू यू नो, हम जितना भी चाहें, वी स्टिल हैव टू बी picked by people you know who we love and respect। और जब वो होता है ऐसा तो बहुत खुशी होती है। और honestly you know for me, because वो कभी कभी हो जाता है ऐसे कि पीरियड की लुक की कुछ या whatever, पर I feel जो आप कर रहे हैं उसमें, और जो आपकी जो इमोशनल जर्नी है, और जो you know, because I really honestly, जैसे आप दिखते हैं ना, ऑडियंस उससे थक जाती है आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज आपको ऑडियंसेस के दिलों को एंगेज करके रखना है। एंड आई फील दैट इज एन आर्टिस्ट बिगेस्ट वो जो पैशन, और वो जो एक वो वहीं से आती है कि हमें दिलों को जोड़ना है, और मुझे आपके दिल में बैठ के घर जाना है, कि आप मुझे अपने साथ रखें। दैट इज समथिंग, एंड वो सिर्फ अच्छे टीम के साथ हो सकता है, अच्छे को एक्टर्स के साथ, अच्छी टीम्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर के साथ, राइटिंग के साथ। सो वही ड्रीम है, और अगर हो रहा है धीरे धीरे करके, तो आई फील अ ब्लेसिंग ऑन माई हेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल, एंड थैंक यू। आई थिंक वो दिल आ चुकी है मोहतरमा सबके में बैठ चुकी है और राज करती है आप सबके दिल पे, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज आपने बोली अदिति, एक इंटरव्यू में कहीं तो मैंने पढ़ा कि विक्रम सर इज एन एक्टर्स डायरेक्टर। हम हमेशा एक्टर्स से पूछते हैं कि आर यू अ डायरेक्टर्स एक्टर, बट मुझे बहुत अमेजिंग लगी ये बात कि आपने ये बोला
कि he is an actor's director. So tell us his qualities, that how he is an actor's director. पता है मुझे जैसे हम जब आते हैं सेट पे हम काफ़ी वल्नरेबल होते हैं कि you're stepping into somebody else's mind and heart and clothes and house and तो हम थोड़े से vulnerable से होते हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा fear होता है. हाथी कूद रहे होते हैं हमारे टमी में रोज, और कि will we, like I always feel कि वो will the director smile and be okay कि हो गया है. But like I find like Vikram sir, that combination of आपको एक तो छूट देना कि आप जंगल जिम पे उल्टा लटक जाओ, कोई बात नहीं मैं आपको पकड़ लूंगा आप गिर जाओगे तो, बट ही डज इट इन अ वेरी क्वाइट वे which is it's very reassuring and और वो बहुत बेस्ट hugs देते हैं. I always feel कि directors in some ways ना they are very like वो जो आपको जो nurture करके रखते हैं ना कि आप खेलो भी लेकिन हम आपको we will make sure that you don't lose your way. तो विक्रम सर ऐसे, और जब वो डायरेक्शन भी देते हैं ना तो वो मुझे ऐसे पर्सनली मैं ऐसी हूँ कि अगर कोई मेरे से बात कर रहा है मैं उनकी बात सुन रही हूँ और मेरे को ऐसे लगता है ओके 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 शूट रेडी सडनली वो ऐसा टाइम करके कुछ समझ आया. एंड जो विक्रम सर है वो बहुत जेंटली आके आपको ऐसे जेंटली से बोलेंगे एग्जैक्टली पॉसिबली व्हाट यू नीड टू हियर टू इमीडिएटली गेट यू, व्हिच इज आई सी दैट समवेयर ही really feels for actors and honestly every single human on set. Yeah, that's and he doesn't make a big noise about yeah. कभी भी नहीं. In fact आप half the time वो सर पकड़ के बैठे होते हैं but he is there so present with you and that is a real boon. And sorry to speak out of turn, by the way, जैसे अभी बात करी आयती ने, I think we were having a conversation about director की craft एक तरफ है. Suddenly, you know, actor handling has become a very important, you know, part of the KRAs of the director. And I'm not talking about the tantrums of, you know, the actor handling, but हर एक एक्टर के अंदर कुछ है जो एक डायरेक्टर को निकालना पड़ जाता है. वो मुझे लगता है भली भांति सर ने निकाल लिया है. In all of us, especially me and Siddhant, I think we both were really nurtured by him. Correct me if I'm wrong. Bye, bhai. No, We I were think also- everyone. I think. Yeah, but I know what you mean. Yeah. Yeah. हमारी conversation Vikram वैसी sir, better. this is partiality. But yeah, he Did they also. get more दोनों को candy छोड़ than us? देते हैं. Yeah. Of course, we got more candies. Ram had to be nurtured the most. Okay, I got the most hugs. Yeah, no, but I also want to add one thing to this because it's a massive show. Yeah. So there is a lot at stake. I'm sure the maximum for him because it's his vision and which is coming to life, and it's beyond the investments and all of that. I feel it's a lot of pressure. Also, the maximum would be for him. And it's like his child that he's been nurtured, the show first, which he's been nurturing for so many years. And thank God that's why it is what it is, because it's taken him so long. And in that setup, to just trust the actors to do that, the actor will do what they are supposed to do. And at the same time, being open to surprises in terms of when someone performs. It's like, you know, I used to look forward to somehow see an expression of that surprise, because the thing is, he's very clear. He knows what's going to happen. He's seen our rehearsals, all of that. But kuch takes hote na, it's like, what will I strive for in the end when it comes to me and my director? It's like, I want to surprise him because I know he knows what's going to happen. So it's that is what I used to strive for. And the thing is, he's open to that, and he really trusted all of us in this setup. He knew that these guys will do. So it's not just us manifesting our characters, it's his trust and his manifestation also, which is Also, I think to deal with each actor differently, because सबकी Yeah. personality type बहुत अलग है. तो उनके अंदर से कुछ निकालना is like everybody, I guess, needs a different
Like I need the hugs. सबका constantly. डीएनए इतना डिफरेंट है कि जैसे आयती बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है हाँ, एकदम से ड्रॉप ऑफ हैट इनको गुस्सा आ जाता है कोई अगर इनको टोके कि आपको ऐसे नहीं ऐसे ये कल बोल रहा था दीदी को गुस्सा नहीं आता. सबसे बड़ा स्पॉट Sweet. विक्रम सर बेस्ट बता पाएंगे कि सारे एक्टर्स अभी साथ में, सबकी क्लास है यहाँ पे, है ना? तो कौन कौन से एक्टर का क्या क्या ऐसा ट्रेट है जिसमें से आपको बेस्ट निकालना पड़ता था? मतलब कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स भी होती होंगी ऑफ कोर्स एक्टर्स में, जैसे किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसको हैंडल करना सबसे मुश्किल था? अब मुझे नहीं आता गुस्सा, जस्ट सेइंग. हाँ ये मजाक में बोल रहा था मैं For this becomes a सबसे headline. मुश्किल तो ये है। क्यों सवाल बहुत पूछा था मैं उसकी बात सुन नहीं रहा था, सवाल बहुत पूछा. No, honestly, every actor, and I think one of the best things that I learned, I assisted Deepa Mehta for a while when she was making water. One of the best things that I learned was the system of blocking. जो हम लोग सुबह करते थे. Yeah. Performing on That set. was great. I think it's the best thing that I have seen anybody do, and I have religiously applied that on my set. कि सुबह आओ, सब लोग आएंगे सुबह, जो भी है 7 बजे 8 बजे 9 बजे, लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं होगी, सब लोग आएंगे सेट पे, सब लोग सीन पढ़ेंगे, ब्लॉक करेंगे कि आप यहाँ बैठोगे, आपको कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है. Everybody is involved at the same time. Everybody feels a part of the same. That's what happens to actors, and I've seen this. जब आप लाइटिंग करके रेडी रखो और एक्टर सेट पे आते हैं, बोलते क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, ये लाइन बोलना है, वहाँ बोलना है. You don't feel a part of the process. You feel like अच्छा ठीक है यार, मैं कठपुतली हूँ जो यहाँ से वहाँ जाना है. But I think involving actors in the process is very important. It's very necessary. It makes for a very calm set. It makes everybody knows exactly what they're supposed to do. Everybody knows कि ये lines हैं, यहाँ बैठने हैं. They're also very involved, in terms of that. तो सबको पता है कि ये होने वाला है. And I think that's a great thing that I like to do. Every actor is different. Somebody needs kid gloves, somebody needs a slight sternness, somebody needs shouting after take 5. Everybody needs hugs. This is a fact. सही है So well, listening to all this, I'm really glad and I'm really hoping कि ये जो सीरीज है वो सबको पसंद आए. बस मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, आजकल ये वेब सीरीज जो OTT पर आ रही है ना, ये आधी पहले रिलीज की जाती है, आधी बाद में. That वो सस्पेंस वाला फैक्टर ऑन रहा है हम सब में, इसलिए या कुछ और वजह है इसकी? नहीं, it's a very simple thing. इस सीरीज में एक इंटरवल पॉइंट है जो, क्योंकि हमारे फिल्मों में इंटरवल पॉइंट होता है. We grown up watching the system of the first half and the second half and the interval point. मतलब दुनिया बदल गई, हम लोग नहीं बदले अभी तक. तो and I think it is a tribute that we are paying to the system of Bollywood as we know it, of the interval point. So you have 5 episodes, you watch it, there is a cliffhanger, एक इंटरवल पॉइंट आएगा वहाँ पे जहाँ पे लिखा भी है इंटरवल. तो उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ी चर्चा कर लो, डिस्कस कर लो दोस्तों के बीच में, वापस आओ सेकंड हाफ देखने के लिए अगले हफ्ते. एंड दैट्स हाउ. सेकंड हाफ में ज्यादा ड्रामा होता है. Always. It's been always. And that's what we are expecting. And thank you so much, all of you, for being so kind, so warm, and so generous in being here. Thank you so much, and all the best. Thank Thank you. so much. Thank you so much.